हाँ जी बेटा, पता है हाउ टू फाइंड रेंज। कल दसिया सीगा क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਰੇਂਜ ਫਾइंड ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੇਂਜ ਫਾइंड ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ y ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ y ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 0 to 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਇਹ -1 ਉਰੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ 1, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ y। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਨ ਵੈਲਿਊ ਟੂ मैक्स वैल्यू। रेंज की होता है मिन वैल्यू टू मैक्स वैल्यू। हुण मान लो ये एफ ऑफ एक्स है और एक क्लियरली मैंने दिख रहा है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसी रेंज आपां की लिखांगे, कहना ही से इट्स रेंज इज एफ ऑफ -1 टू एफ ऑफ 1। तो ये मेरी की होएगी रेंज होएगी। लेकिन ये कदों होएगी जदों मेरा फंक्शन कैसा होएगा, इंक्रीजिंग होएगा। इज इट ऑल क्लियर बेटा। या फिर कुछ क्वेश्चन आप की फाइंड करना चाहेंगे बेटा, डोमेन फाइंड करांगे। की फाइंड करांगे बेटा, डोमेन। अच्छा कुछ क्वेश्चन दे विच याद करो एक AM GM वाला कंसैप्ट सी, AM ग्रेटर दैन GM वाला कंसैप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। कैसे क्वेश्चनों के यूज होंगे AM ग्रेटर दैन GM, जो आप गल करते हैं ना x + 1/x इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। सबनों पता है क्यों होंगे ये, yes or no। AM greater than GM आंदा करना, that A plus B plus C divided by 3 should be greater than equal to A B C the whole cube root। उसमें ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, AM is greater than GM। for example कुछ ऐदा A plus B plus C divided by 3 should be greater than equal to A B C the power 1/3। ਤਾਂ ਕੁछ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ AM greater than GM ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ, x plus 1/x whole divided by 2 should be greater than equal to x into 1/x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। देखो ये क्लियरली x से x कट गया, कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो 2 उधर चला गया, यानी कि अपने को एक पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है जी। ਆਪਾਂ रेंज ਕੱਢਣ ਲਈ बहुत सारी टेक्निक्स हैं। की टेक्निक है, एक तो ਆਪਾਂ x ਕੱਢਾਂਗੇ in terms of y, या फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ AM ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ GM ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਇਹ f of x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, y ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ f of x ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, y। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। तो डोमेन का कोई रोला नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बहुत औखा हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली दिख नहीं रहा। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, वट यू हैव टू डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। करिए स्टार्ट करिए। तो किवें होएगा बेटा, देखो हाँ जी की बनेगा y डॉट e⁻x प्लस y इक्वल टू e⁻x माइनस 1। सो y e⁻x माइनस 1 y minus 1। अच्छा कहना ही से इट विल बी रिटन एज y plus 1/1 minus y। अच्छा अगर उरे x है, कहना ही से उरे x आ जाएगा तो उरे log लग जाएगा। बेटा बोलना नहीं है, जब बोलना तो बाहर चले जाओ। हाँ जी क्लियर है जी, ये बनेगी गल, समझ आ गई गल। ये x अगे आ जाऊगा, ln e की वैल्यू कितनी होती है 1। हुण मैं की फाइंड करता हूँ ना, x का कट लिया इन टर्म्स ऑफ y, देन व्हाट टू डू आफ्टर दैट, मैं की करूंगा डोमेन करूंगा इन टर्म्स ऑफ y। की करूंगा डोमेन। सो व्हाट इज द डोमेन, लॉग दे अंदर वाली वैल्यू हमेशा कैसी होती है बेटा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो कहना ही से y plus 1 डिवाइडेड बाय 1 minus y
शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाऊंगा? नहीं, इट विल बी ओनली ग्रेटर देन 0। जो ग्रेटर देन 0 है उरे की बनेगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 शुड बी लेसर देन 0। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ that y belongs to open bracket -1, this is your answer and this is your range। यही ਤੁਹਾਡੀ रेंज है। इज इट ऑल क्लियर बेटा? ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ रेंज फाइंड करनी है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन दे, चलो लिख लियो, नोट डाउन कर लियो ये, ठीक है। चलो हूँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सा, क्या दिख रहा है आपको, क्या लगा हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है इसका मतलब हमें प्री डिफाइंड है ये। अगर प्री डिफाइंड है तो बेटा आप सभी को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 से 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब दिक्कत क्या आ गई कि अगर मैंने इसको 0 से 1 ले लिया, ठीक है ना, लेकिन नीचे भी क्या पड़ा है बेटा हमारे पास? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पड़ा है। या तो जो नीचे पड़ा है वैसा ही मैं ऊपर बना लूं, फिर बात बन जाएगी। करके देखें कैसे सर? अच्छा अगर मैं लेट्स सपोज देख लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। +1 -1 कर लिया, क्यों किया +1 -1? हाँ जी, क्यों किया आपने +1 -1? यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1 -1 अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इतना आ गया सर, अब क्या करोगे? अब बताओ। हाँ जी, नाउ व्हाट टू डू? अब सिर्फ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है? इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है। तो बेटा बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? इट विल बी लाई बिटवीन 0 to 1। इट विल बी लाइंग बिटवीन 0 to 1। और दोनों साइड हमने क्या ऐड कर देना है? 1 ऐड कर देना है बेटा। तो बेटा ये बताओ अब ये किसके बीच में लाई कर गया? 1 और 2 के बीच में लाई कर गया। मेरे को लेना क्या है बेटा? इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कर दें। हाँ जी, जब इसका रेसिप्रोकल किया तो अब बताओ क्या होएगा? ये बन गया 1/2, ये बन गया 1। जब भी बेटा पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये शिफ्ट होते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सो इट विल बिकम 1/2 और ये बन जाएगा 1। पहले तो ये बताओ, समझ में आया? अब एक और चीज देखो, अब मेरे को माइनस भी चाहिए यहाँ पे। चलो अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो भी क्या होगा बेटा? चेंज हो जाएंगे। ये यहां हो जाएगा -½ और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी ये हम गलत कर गए, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आना, ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें। इक्वालिटी का साइन कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। और ये आ गया -1। इज इट ऑल क्लियर बेटा? अच्छा और साथ में क्या है? 1। तो सारी तरफ 1 को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो आंसर बताओ क्या आ गया? ये क्या कितना हो गया? ये 0 और ये कितना हो गया? 1/2। तो रेंज क्या आ गई आपकी? 0 से 1/2। और 0 पे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। 0 पे कौन सी ब्रैकेट है बेटा? क्लोज ब्रैकेट है। तो y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0, 1/2। 1/2 के ऊपर कैसी ब्रैकेट आ गई? ओपन ब्रैकेट आ गई। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आया? सर इसको इन टर्म्स ऑफ y निकाल के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, निकाल लेना, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर है जी? समझ में आया? अगर प्री डिफाइंड फंक्शन है तो हम प्री डिफाइंड फंक्शन को ध्यान में रख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है और उसको लेके ही सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से आंसर आएंगे उसके। क्लियर है जी? और क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे, देखो ये क्या सेम आ गया? हाँ जी, अच्छा ये लिखा हुआ है 7 - xc x - 3, कुछ ऐसा है ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में? 7 - xc x - 3। ये c सर देखा हुआ है कहीं, क्या है ये c बेटा? कॉम्बिनेशन है। क्या है ये c? कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन है बेटा तो कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉपर्टी थी कि ये वाली जो वैल्यू है दैट 7 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक और कंडीशन भी होती थी यहाँ पे, अगर एनसीआर है तो एनसीआर की क्या कंडीशन होती थी? ये इंटीजर वैल्यू भी होते थे।
दे बिलोंग्स टू इंटेग्रल वैल्यू, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा और क्या होती थी कंडीशन, एनसीआर की कंडीशन याद है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल या क्या होएगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये लो क्लियर हो गया। तो ये तीन कंडीशनें हैं, ध्यान में रखना। यहां पे हम सिर्फ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, इंटेग्रल वैल्यू ले सकते हैं। हम कभी भी इसका आंसर 1.5 2.5 ऐसा नहीं ले सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू यूज करनी है बेटा, इंटेग्रल वैल्यू यूज करनी है। अब कैसे यूज होगी इंटेग्रल वैल्यू, देखो अब ये कह रहा है कि x शुड बी लेसर देन 7, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसके बीच में अगर बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 3 4 5 6। क्या मैं x को 7 ले सकता हूं, नो। एक तो ये हो गया पॉइंट। अब यहां पे देखो क्या होएगा, ये 3 इधर जाके कितना बन गया 10, और ये कितना बन गया यहाँ पे 2x। तो x शुड बी लेसर देन इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू इस केस में कितनी होनी चाहिए बेटा, 5 4 3 2 1, बस यही होनी चाहिए। अब इन दोनों को क्या लेना है बेटा हमने, इंटरसेक्शन। बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा बोलो, एक 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है। क्लियर, ये तो किसकी वैल्यू आई, x की। क्या निकाला मैंने अभी यहां पे, ये डोमेन निकाल ली है। सर कैसे पता चला आपने डोमेन निकाली, अरे वैल्यू ऑफ x निकाला ना मैंने। अब क्या निकालना चाहते हैं हम, इसका रेंज। अब रेंज कैसे निकलेगी, देखो अगर मैं कहता हूं कि x को आपने 3 रख दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने 7 - 3 कर दिया तो कितना बनेगा 4c0, 4c0 nc0 हमेशा 1 होता है। अब x को कितना रखेंगे 4, जब 4 रखा तो कितना आएगा 3c1, 3c1 nc1 हमेशा n होता है। और जब हमने x को कितना रख दिया 5, तो 5 रखने पे कितना बनेगा 2c2, 2c2 भी कितना होता है 1। अब बताओ रेंज कितनी आई, हाँ जी बोलो, 1 and 3। सर 2 बार 1 आ रहा है, अरे सेट ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, चाहे 2 बार आए चाहे 10 बार आए, 1 को तो एक ही बार लिखना है। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आई ये चीज, पक्का देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, किमें 3 तो ज्यादा बेटा, जिन्निया भी टर्म्स लिखेंगे शब्दा की लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। हाँ फिर हाँ कला कला फाइंड करना पेगा, रेंज कड्ढन ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ 4 ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਦਾ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ 5 ਆ ਜਾਂਦੀ मैं 5 ਦਾ ਕੱਢਦਾ। क्लियर, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे लो जी। अच्छा ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये कैसे होएगा सर, ये तो वो आ गया अपना, ऊपर आ गया क्वाड्रेटिक, नीचे आ गया बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक है। सर इसका कैसे करेंगे, मैंने बोला था ना आपको कुछ फंक्शन हमें प्री डिफाइंड याद होते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाता हूं। अब बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या आप इस जगह पे ये सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा सोच सकते हैं? अच्छा इसके बाद क्या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये क्या कर दिया, अकेले अकेले से क्या कर दिया मैंने डिवाइड। अभी बताया ये कौन है, आपको बताया ना x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये भी तो वही है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 2। क्लियर और नॉट? x देखो x, एक चीज और नोटिस करना वहां पे भी कि x प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज ए पॉजिटिव वैल्यू। इसका भी ध्यान रखना, व्हेन x इज ए पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे सर बोला ही नहीं x इज ए पॉजिटिव वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है बेटा। क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये किससे लेसर होगा, इन्फिनिटी से। तो इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे, हाँ जी, तो ये किसके इधर आ जाएगा, ये 1 बाई 2 आ जाएगा।
यस और नो। अच्छा इधर क्या था, इधर क्या होता है, इधर क्या होगा, 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा कहां तक जाएगा, ये 2 से बड़ा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बेसिकली ये इन्फिनिटी था, तो इसका मतलब ये किससे बड़ा हो गया, अब 0 से बड़ा हो गया। सो आंसर इज व्हाट, हाँ जी व्हाट इज आंसर, 0,1/2। और 1/2 के ऊपर कैसी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी। अब इतना तो समझ में आ रहा है, 0,1/2 और 1/2 के ऊपर कैसी ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रही है चीज? करती हो देख, साइड, अरे साइड चेंज कर दे, इनइक्वालिटी चेंज कर दे, मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दी, ये देख, नहीं साइड चेंज करनी है, साइड चेंज कर ला, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर है, हाँ जी समझ आई गल, पक्का। चलिए आगे, चलो हाँ जी क्या दिया हुआ है, 1/2 -8 ln 3x। अब बताओ लॉग वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे लॉग वाले क्वेश्चन को? हाँ जी क्या होता है लॉग वाले क्वेश्चन में, लॉग का ग्राफ क्या होता है, लॉग की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, लॉग की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या करोगे फिर? अच्छा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, ये बताओ। हाँ मेरे को तो इसका ग्राफ ऐसे दिखता है, चाहे ये log x हो चाहे log 3x हो, ये आ गया 1,0, तो ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, देख लो। फिर log बेस e दिता है बेटा ln, वो तो क्लियरली दे रखा है उसने कि वो log बेस e है, नहीं समझे? समझ गए ना, ये बेटा फंक्शन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/2 -8 ln का मतलब होता है log बेस e 3x। तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। डोमेन में क्या होगा बेटा बोलो, बोलो क्या होगा डोमेन में? सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी, तभी मैं इसकी रेंज फाइंड कर सकता हूं। तो डोमेन में क्या क्या चक्कर है ये बता दो बस। नीचे वाली टर्म नहीं, 3x शुड बी ग्रेटर देन 0, और पूरी टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती, यही चीजें होंगी, दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0। और बेटा और क्या होना चाहिए, दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो क्लियरली सॉरी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं 2 इज नॉट इक्वल टू 8 ln 3x, 1/4 should not be equal to ln 3x, तो 3x should not be equal to e raised to power 1/4, x should not be equal to e the power 1/4/3। कुछ ये चीज है, समझ में आया? अब बताओ कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आ गई हमारी डोमेन। अब रेंज कैसे निकालनी है इसकी, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही तो चक्कर है बस। क्या है डोमेन की एंड वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, मतलब रोला ही रोला पड़ा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में है। am ग्रेटर देन gm तब लगाते हैं जब gm वाला पोर्शन खत्म हो जाए, यहाँ पे तो खत्म ही नहीं होगा, फिर क्या करें सर बताओ? अगर कुछ रास्ता ना आए, ना डोमेन से कुछ रास्ता आए, ना फिर ग्राफ से कुछ रास्ता आए, ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कुछ रास्ता आए, फिर क्या करना चाहिए हमें, कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए हमें? हमें क्या निकालना चाहिए, इक्वल टू वाई करके वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ
वाई। समझ में आया? क्या करोगे बोलो? हाँ जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2y माइनस 8y ln 3x शुड बी इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 8y ln 3x। तो ln 3x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा? 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8y। क्लियर है जी? तो यहां से बेटा 3x की वैल्यू क्या आ गई? e की पावर में 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8y। और x की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी? ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालनी है? इसकी डोमेन। क्या निकालनी है? इसकी डोमेन निकालनी है। बस डोमेन में क्या चक्कर है कि ये वाली वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1/4 नहीं हो सकती। बस इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? तो बस यही आपकी वैल्यू आएगी दैट y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। y कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/4। बस यहां से क्या y की वैल्यू आप निकाल लोगे? यस और नो? निकल जाएगी y की वैल्यू। बस दैट्स इट, ये आपका आंसर है। हाँ जी, क्लियर है जी? चलें आगे। चलो, हो गया क्लियर है जी? चलो, हाँ जी, ये बताओ कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड दिस? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका? ये लॉग वाला क्वेश्चन है। लॉग वाले की सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ती है बेटा? डोमेन। तो इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? अच्छा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले है डिक्रीजिंग है। अरे 5 आ गया ना बेस, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ जी, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं x माइनस 5 x प्लस 5 शुड बी लेसर देन 0। और x की वैल्यू क्या आएगी बेटा बोलो? -5 से 5 के बीच में। अब देखो, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि डोमेन के क्या पता है बेटा? हमें एंड पॉइंट्स पता है। डोमेन के क्या पता है बेटा? यहाँ पे हमें एंड पॉइंट्स पता है। अब डोमेन के एंड पॉइंट पता है, एक 5 है एक -5 है। इज इट क्लियर हो? तो बेटा ये मेरी मिन वैल्यू आ रही है और ये मेरी मैक्स वैल्यू आ रही है। अच्छा, इसमें एक और चक्कर है। जो फंक्शन है ना वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। मेरे को इसकी मिन और मैक्स वैल्यू ढूंढनी है। हाँ जी, अगर मैंने -5 रखा, -5 रखने पे क्या आएगा? log 0। log 0 की वैल्यू कितनी होती है? -∞। सभी को पता है। अगर मैंने यहाँ पे +5 रख दिया तो +5 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 25। तो 25 माइनस 25 अगेन log 0, तो भी आंसर -5 आ रहा है। फिर सर क्या करें? -5 और 5 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू सोचो जो यहां रखने पे आपको मैक्स और मिन देगा। मिन तो हमें समझ में आ गया, 0 आएगा। मिन वैल्यू इज 0। मैक्स वैल्यू बताओ कितनी आएगी? ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे 0 रखूंगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी मैक्स वैल्यू कब आएगी? जब आप x को यहाँ पे कितना रखोगे? 0। तो 25 इसकी मैक्स वैल्यू आएगी। और व्हाट अबाउट इट्स मिन वैल्यू? 0। सर मिन वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है। नेगेटिव हो सकती है, बट हम लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। इज इट ऑल क्लियर बेटा? तो अब बताओ इसकी रेंज बताओ क्या आएगी? हाँ जी, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन? लॉग बेस 5 25। अच्छा, ये तो मिन मैक्स वैल्यू आएगी। यहाँ पे बताओ लॉग बेस 5 0 और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी। ये क्या आ गया आपका? मिन वैल्यू। और लॉग बेस 5 25 ये आपकी क्या आ गई? मैक्स वैल्यू। तो ये बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया -∞ और ये कितना आ गया? 2। दिस इज योर आंसर। तो आंसर क्या आ गया? -∞ से। क्लियर है जी? तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हो तो सबसे पहले हमने उसकी क्या ढूंढ लेनी है बेटा? रेंज ढूंढ लेनी, डोमेन ढूंढ लेनी। फिर उसके बाद हमें उसका क्या निकालना है? मैक्स और मिन निकाल के देखना है। तो बड़े आराम से लॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करिए अगला क्वेश्चन। इज इट ऑल क्लियर बेटा? चलो, फिर लॉग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्या ढूंढोगे?
हाँ जी डोमेन। अच्छा डोमेन ढूंढने से ज्यादा अच्छा यही है कि इसमें डोमेन की जगह अगर आप मैक्सिमिन ढूंढ लो सीधे ही तो भी चल जाएगा काम। जब भी लॉग वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्या ढूंढ लो, जो लॉग के अंदर फंक्शन है, हमें पता है लॉग बेस, देखो बेस, देखो बेस क्या है, ये तो पक्का कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बस अंदर वाले बंदे की क्या ढूंढ लो बेटा, अंदर वाले वैल्यू की मैक्स और मिन ढूंढ लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्यों हमने डोमेन ढूंढनी है, छोड़ो डोमेन को, आ जाओ। हाँ जी क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में बोलो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्स मिन कैसे ढूंढते हैं बेटा बोलो। ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है एक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और यहां पे मैंने प्लस 4 माइनस 4 कर दिया। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अच्छा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे -5 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर मैं इसको देखूंगा तो ये -9 बन गया, यस और नो, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 9 बन गया, ये माइनस। अच्छा इतने पोर्शन को बताओ ये क्या हो गया, ये x-2 का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी कि ये बन गया x-2 की होल स्क्वायर। सेम ही कंसेप्ट नहीं बन गया पीछे वाला, 9 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बन गया ये। तो इसकी मैक्स वैल्यू बता दो कितनी बनेगी। मैक्स वैल्यू तब बनेगी जब ये 0 होगा, इसकी मैक्स वैल्यू 9। और व्हाट अबाउट इट्स मिन वैल्यू, हाँ जी इसकी मिन वैल्यू क्या बनेगी, अगेन 0 बनेगी। तो बेटा इसका इसकी रेंज बताओ क्या बनेगी, log बेस 3 0 log बेस 3 9। हाँ जी log बेस 3 0 कितना होता है -∞, और log बेस 9 कितना होता है 2। तो सबके आंसर -∞ से 2 बनेंगे, नहीं नहीं बाय डिफॉल्ट बन गया ये। इज इट ऑल क्लियर, समझ में आया, पक्का, चले आगे। चलो हाँ जी साइन की रेंज क्या होती है, -1 से +1 है ना, लेकिन उसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, डोमेन, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम क्या देखते हैं बेटा, उसकी मैक्स और मिन वैल्यू। तो बता सकते हो इसकी मैक्स वैल्यू क्या बनेगी और इसकी मिन वैल्यू क्या बनेगी, पाई स्क्वायर बाय 16 है, पाई स्क्वायर बाय 16 सॉरी -x स्क्वायर। हाँ जी बताओ जी, इसकी मैक्स वैल्यू और आपने इसकी क्या बतानी है, मिन वैल्यू। इसकी मैक्स वैल्यू कब बनेगी, जब x को क्या रखोगे 0, तो इसकी मैक्स वैल्यू बनेगी पाई स्क्वायर बाय 16। और इसकी मिन वैल्यू क्या बनेगी, जब x को पाई बाय 4 पुट करोगे तो यानी कि इसकी मिन वैल्यू क्या बन जाएगी 0। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया, ठीक है। अब रेंज बतानी है, हाँ जी रेंज बताओ जी क्या बनेगा, 3 टाइम्स साइन, मिन वैल्यू बताओ कितनी है 0। अच्छा सॉरी हाँ मिन वैल्यू 0 है तो इट विल बी बिकम √0। एंड मैक्स वैल्यू कितनी है बेटा इसकी बोलो, √ पाई स्क्वायर बाय 16। हाँ जी ये क्या बन गया 0, और ये क्या बन जाएगा 3 पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सो आंसर विल बी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 0,3/√2। क्या ये समझ में आया, यस और नो। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सर साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है। सर ये बिना आपने सोचे समझे ऐसे सॉल्व कर दिया, आपने तो ये सोचा ही नहीं कि साइन एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। मैंने तो सोचा था बट आपने नहीं सोचा। ये देखो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, अच्छा ये वाली वैल्यू होती है -π/2 और ये वाली वैल्यू क्या होती है π/2। अब जो डोमेन है ना इसकी, आप चेक कर लेना, जब आप इसकी डोमेन निकालोगे ना तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/4 से π/4 बनेगी। डोमेन कितनी बन रही है -π/4 से π/4। ये देखो ये रहा -π/4 और ये रहा आपका
π/4। तो इस दौरान जब हमने बात करनी है, इस दौरान मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, तो किया हमने। अगर बीच में ये कहीं और कोई इंटरवल होता फिर हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इज इट ऑल क्लियर बेटा? ये पता लग गया था कि इंक्रीजिंग है, इसीलिए हमने डायरेक्ट ऐसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चले आगे। हाँ जी, इसको कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। हाँ जी, वायलेट कर ले, ऊपर सेम बना के फिर क्या करेगा? ऊपर लीनियर बन जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर दिक्कत। या तो ऐसा हो ना कि हम ऊपर सेम इसलिए बनाते हैं जब हमें एक फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो। क्या यहाँ पे कोई फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो करना क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको किसके इक्वल लेट कर लोगे? y के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो बन क्या गया बेटा? ये एक्स स्क्वायर वाई 3xy एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो जब हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो ये बन गया y माइनस 1। यहाँ पे बेटा x को बाहर निकाल लिया तो ये बन गया 3y प्लस 1 और ये बन गया प्लस 2 शुड बी इक्वलेंट टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी? अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x कैसा नंबर है यहाँ पे? x इज ए रियल नंबर, यस और नो? x कैसा नंबर है? रियल नंबर है। तो अगर x रियल नंबर है बेटा तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे d कैसा होना चाहिए? x रियल है और इक्वल है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? d शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि x जो है वो कैसा नंबर है? वो रियल नंबर है। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? ये देखो, ये आपका a है, ये क्या है बेटा आपका b, और ये क्या है आपका बेटा c। तो d के लिए क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? मैंने क्या किया? x रियल क्या था? x यहाँ पे रियल और इक्वल हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो इसको। हाँ जी, क्या बन जाएगा बोलो? 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 6y माइनस 8y प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन क्या गया? 9y स्क्वायर 2y प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यही बनेगा? देखो, कोई डाउट इसमें? अब चेक करो कि क्या ये जो लिखा हुआ है इसमें d कैसा आएगा? ये भी तो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y बन गया। इसका d क्या आ रहा है? इसका d नेगेटिव आ रहा है। d इज नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो a है वो क्या है? पॉजिटिव। तो ये वाली इक्वेशन, हाँ जी, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। So y belongs to not x, y belongs to all real number. That's it. बोल बोल। तो बेटा y कैसा आएगा इस केस में? ऑल रियल नंबर। पता लग गया क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d नेगेटिव आ जाए और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इज इट ऑल क्लियर बेटा? चले आगे चले। चलो, हाँ जी, फिर से यही क्वेश्चन, क्या करें? अब देखो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक और नीचे वाली क्वाड्रेटिक में एक फर्क है। क्या फर्क है? ऊपर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? ये देखो, ये वाला क्वाड्रेटिक और ये वाला पार्ट, ये क्या है बेटा? सेम है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो मैं क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो लीनियर टर्म भी खत्म हो रही है ऊपर। पिछले केस में क्यों नहीं लिख रहा था ऐसे? क्योंकि पिछले केस में क्या बन रहा था? वो लीनियर टर्म बन रही थी वहां पे।
अब सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, याद करो अभी बताया मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालते हैं। इसका क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे इसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा जब मैंने इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तो क्या बन जाएगा, 1/, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पे क्या कर दोगे, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 अपॉन ये बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा बोलो, 3/4। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आया। अब मेरे को ये 1/, है ना, 1/, बाद में देखते हैं, पहले मेरे को आप ये बता दो नीचे वाले की जो मिन वैल्यू है वो कितनी होगी। मिन वैल्यू तो मेरे को पता है 3/4, क्यों, जब ये 0 होगा तो मिनिमम 3/4 ही आएगा। और मैक्स वैल्यू का कोई अता पता नहीं है, इट इज अनडिफाइंड। मैक्स वैल्यू क्या रहेगी इसकी, अनडिफाइंड रहेगी। क्या मेरी बात फॉलो कर रहे हो, यस और नो। क्या ये जिंदगी में कभी 0 होगा, नहीं, ये कभी 0 नहीं होगा। तो इसका रेसिप्रोकल किया हमने, तो आपको ये समझ में आ गया इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, इट शुड बी लेसर देन इंफिनिटी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा ये पूरे फंक्शन का, तो यहां पे 1/∞ कितना होता है, 0, और यहां पे ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 4/3। और साथ में क्या करना है, +1, तो मैं दोनों साइड पे क्या कर दूंगा बेटा, +1 +1 कर दूंगा। तो बेटा अब बताओ इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 1 से लेके 7/3 तक, और 1 के ऊपर कैसी बॉल, ओपन, और 7/3 के ऊपर क्लोज्ड। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या इतनी बात समझ में आई, यस और नो। पता लग गया, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आया तो उसको दो तरीके से सॉल्व करवाया, ऐसे कब करना है और पिछला केस कब लगाना है, दोनों समझ में आ गए। चलें आगे, चलो जी लिखो जरा, देखो पीरियोडिक फंक्शन आता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन बोलो, जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अब एक चीज नोटिस करो, ये देखो सबसे सिंपलेस्ट जो रिपीटिंग फंक्शन है वो कौन सा है, sin x। ये देखो ये 2π है ना, इतने पार्ट के बाद ये वाला फंक्शन क्या हो गया बेटा, देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे फंक्शंस को आप क्या कहते हो, पीरियोडिक फंक्शन कहते हो बेटा। क्या कहते हो ऐसे फंक्शन को, पीरियोडिक। मतलब अगर मैं कहूंगा कि अगर किसी वैल्यू में अगर मैं कोई ऐसी टर्म ऐड करूं और आंसर विल रिमेन सेम, आंसर क्या आ जाए, दोबारा सेम आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। मैं बाहर निकाल दूंगा अब, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन उसको पता है मैं किसको टोक रहा हूं। अगर बेटा नहीं लगानी क्लास चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पागल नहीं हूं जो इतना करके आ रहा हूं यहां पे। तो सीधा कुछ करना नहीं है, उरे बैठ के हंसी जाना है, हंसी जाना है, हंसी जाना है क्लास से। लगानी है लगाओ क्लास, नहीं लगानी तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फोन नहीं करूंगा घर पे, जाओ निकल जाओ यहां से। कमाल है यार, पागल है, इतने क्रूशियल टाइम है और फिर भी अकल नहीं है, हंस रहे हैं। इधर देखो जरा, हाँ जी क्या हो रहा है बेटा, अगर मैं यहां पे x में कुछ टाइम पीरियड ऐड कर रहा हूं और फंक्शन सेम आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन बोलेंगे उसको, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पीरियोडिक फंक्शन। और यहाँ पे देखो ये t क्या है, ये t है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। क्या है यहाँ पे t है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। मतलब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्यों आया, देखो t क्यों आया 2π। देखो इधर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे है, ये देखो ये तो भाई 4π के बाद भी तो रिपीट कर रहा है,
कितने के बाद रिपीट कर रहा है ये 4 पाई। ये देखो ये रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद भी और ये कर रहा है 4 पाई के बाद भी रिपीट। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? जो सबसे इजी, जो सबसे नजदीक होता है। सबसे पहले रिपीट कहां पे हुआ? 2 पाई पे रिपीट हुआ। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका क्या होएगा? 2 पाई होगा, ना कि 4 पाई होगा। ये तो रिपीट तो 6 पाई के बाद भी होगा, ये रिपीट 8 पाई के बाद भी होगा, है ना, बार बार रिपीट करता जाएगा। लेकिन एफटीपी क्या होती है? एफटीपी मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट वैल्यू। ये देखो ये 2 पाई हमारी क्या है यहाँ पे? लीस्ट वैल्यू है। तो इसीलिए इसी को ही आप क्या बोलते हो यहाँ पे? एफटीपी बोलते हो। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? टी कहते हैं। कि लीस्ट टाइम कितने बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ। इज इट ऑल क्लियर बेटा? तो वही हमने यहाँ पे मेन जो है वो टी निकालना होता है, बस। क्लियर है जी? ये देखो लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, मतलब यू कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई 4 पाई 6 पाई सो ऑन। लेकिन इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा? वो सिर्फ टी ही होगा। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? चलो जी, एक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। क्या प्रॉपर्टीज हैं बेटा? देखो ध्यान से, एक मिनट इसको इधर ही कर लेते हैं। हाँ जी, देखो फंडामेंटल टाइम पीरियड अब क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल मान लो साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है। इनके पीरियड क्या होते हैं? साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बेटा? बोलो। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई। अच्छा, टैन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। और कॉड एक्स का, इसका भी पाई। कॉसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स का भी पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई होता है। क्लियर? इन सभी के पीरियड क्या होते हैं बेटा? 2 पाई 2 पाई 2 पाई होते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर मैं इनमें मोड लगा दूंगा, सब में मोड लग गया, इनका पीरियड कितना हो जाएगा? इन सभी का पीरियड हो जाएगा पाई। इन सभी का पीरियड पाई हो गया। इज इट ऑल क्लियर बेटा? अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैं बात करूंगा साइन की पावर एन एक्स, लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, या फिर कॉसिकेंट की पावर एन एक्स और सीकेंड की पावर एन एक्स। अगर तो बेटा एन हुआ इवन नंबर फिर तो पीरियड हो जाएगा पाई, लेकिन अगर एन हुआ ओड नंबर फिर पीरियड रहेगा 2 पाई। टैन और कोट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे इवन हो चाहे ओड हो, इट विल रिमेन ऑलवेज पाई। समझ में आया ये? पक्का? इज इट ऑल क्लियर बेटा? अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो मेरे को ये बताओ साइन ए एक्स का पीरियड कितना होगा? इट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब वही चीज यहां पे लिखी हुई है, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइन एफ एन एक्स का पीरियड क्या होगा? इट विल बी टी बाई एन, और एन के ऊपर यहां पे क्या लग जाएगा? मोड लग जाएगा। क्यों? एन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे x बाई एन है, x बाई एन है, तो क्या होएगा? t अपॉन 1 बाई एन, सो इट विल बी सिंपली एन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सिंपली एन टी। हाँ जी, क्या बन जाएगा बेटा? ये देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये एन टी बन जाएगा। मतलब इसको हमने क्या लिख दिया? 1 बाय एन लिख दिया। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? अगर मैं यहां पे देखो ये कहता हूं कि ये ए एक्स प्लस बी हो गया, कितना हो गया ये? ए एक्स प्लस बी। तो बेसिकली इस बी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो रोल है वो किसका रोल है? सिर्फ इस ए का रोल है। तो मतलब टी को किससे डिवाइड कर दोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? अब ध्यान से देखो, इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर सेम टी, देन इनको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो उनका भी पीरियड क्या रहेगा? टी रहेगा। जैसे मान लो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इज इट ऑल क्लियर बेटा? एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। मतलब
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स इक्व टू 2, एफ ऑफ एक्स अगर इक्व टू 2 आ गया तो उसका पीरियड क्या होगा, उसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रही है चीज? चलो ये तो हमने देख ही लिया सभी का पीरियड। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो साइन एक्स बाई 2 का पीरियड कितना होगा, कैन आई से इट विल बी रिटन एज 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2। तो क्लियरली आप फिगर से चेक कर लो, इसका पीरियड 4 पाई आएगा। देख लो हर 4 पाई के बाद ये क्या करेगा बेटा, रिपीट करेगा। देखो दिख कर रहा है ना, ये 4 पाई के बाद रिपीट। अगर 2x है तो ये हर पाई के बाद रिपीट करेगा, देखो ध्यान से। इज इट ऑल क्लियर? तो तभी तो होता है वो कंप्रेस हो गया, इसका मतलब होता है कंप्रेशन, और इसका मतलब होता है एक्सपेंशन। ये देखो ग्राफ एक्सपैंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन। क्या मेरी बात फॉलो कर गए? यस और नो, समझ में आया? अच्छा एक चीज और देखो, चलो सिंपल सा पॉइंट है एक। अगर मैं बात करता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आर दे पीरियोडिक फंक्शन? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? क्या x पीरियोडिक फंक्शन है? क्या x पीरियोडिक फंक्शन है? नहीं। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक फंक्शन है? क्या रिपीट होता है वो बार बार? नहीं। तो दोनों ही रिपीट नहीं हो रहे। ये देखो ये और ये दोनों पीरियोडिक नहीं है, दे आर नॉन पीरियोडिक, बट इनका जो सम या इनका जो सबट्रैक्शन है वो पीरियोडिक है। कैसे सर? किसके इक्वल बनेगा ये? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या ये पीरियोडिक है? यस। ये नॉट पीरियोडिक है, ये नॉट पीरियोडिक है, बट इनका सबट्रैक्शन क्या बन गया? पीरियोडिक। समझ में आया? अब एक चीज और आपने यहां से सुननी है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका पीरियड t1 है और इसका पीरियड लेट्स सपोज t2 है, वो तो हमने सेम के लिए बात की थी। अगर ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है इंडिविजुअली और इनके पीरियड t1 एंड t2 है, तो जो टोटल फंक्शन का पीरियड होगा, लेट्स सपोज इसको मैंने h ऑफ x मान लिया, तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ h ऑफ x? कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, एलसीएम ले लेना है t1 कोमा t2 का। अच्छा एक और चीज बताऊं यहाँ पे, t1 अपॉन t2 जो है ना, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? t1 ओवर t2, दैट विल बी रैशनल नंबर। t1 बाई t2 कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। जिस दिन t1 बाई t2 इररैशनल हो गया ना, जिस दिन क्या बोल रहा हूं बेटा, t1 बाई t2 इररैशनल हो गया, उस दिन हम लिख के आएंगे h ऑफ x इज नॉट पीरियोडिक। तो उस दिन h ऑफ x नॉट पीरियोडिक हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वेव्स एंड ऑसिलेशंस में पढ़ा होगा कि वो वेव कब आपकी दोबारा रिपीट करती है, वो यही कंसेप्ट है सारा। क्लियर है जी? तो बेटा t1 t2 तो ठीक है आ गया हमारा, t1 बाई t2 कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, तभी उसका हम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर वो इररेशनल हो गया तो वो हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि ये पीरियोडिक नहीं है। अब इसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? चलें आगे, चलो। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ बेटा, साइन 2 पाई एक्स बाई 3 कोस पाई एक्स बाई 2। सबसे पहले ये प्लस दिया हुआ है तो हमें पीरियड निकालने पड़ेंगे। अब डायरेक्टली पीरियड बता दो इसका, t1 बताओ कितना बनेगा? कैन आई से इट विल बी 2 पाई बाई 3, यस और नो? समझ में आ रहा है? a से डिवाइड कर दिया। और t2 बताओ क्या आएगा? 2 पाई बाई 2, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इस t1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। t2 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 4। t1 t2 आ गया। क्या t1 रेशो t2 निकाल लेंगे, रैशनल आएगा कि इररेशनल आएगा? रैशनल आएगा। 3/4 इज ए रैशनल वैल्यू। क्लियर है? तो बस हमें पता लग गया कि ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, इनका सम भी क्या आएगा? पीरियोडिक। तो इसका t निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3,4 का एलसीएम कितना बन गया? 12। खत्म, आंसर आ गया। दैट्स इट। चलें अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब बताओ इसका पीरियड बताओ कितना आएगा? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस पार्ट? 2 पाई बाय 3। सर इस 5 का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल कोई यूज नहीं है इस 5 का। अच्छा t2 2 पाई बाय 8। क्या t1 बाई t2 करने पे आपको रैशनल मिलता है, इररेशनल मिलता है? रैशनल।
अच्छा सर फिर एलसीएम करना पड़ेगा इसका, बिल्कुल करना पड़ेगा एलसीएम पीरियड निकालने के लिए, क्योंकि रैशनल मिल रहा है हमें 2π/3। अच्छा एक पॉइंट वहां पीछे रह गया डिस्कस होने से, चलो वो बता देता हूं। अगर बेटा एलसीएम आ जाए, ये देखो अगर मेरे को एलसीएम निकालना हो ऐसे, तो ऊपर वाले पार्ट का हम क्या ले लेंगे बेटा, ऊपर वाले पार्ट का क्या लेंगे एलसीएम, और नीचे वाले पार्ट का क्या लेंगे बेटा एचसीएफ। इतनी बात क्लियर है। ऊपर वाले पार्ट का क्या लेना है एलसीएम, और नीचे वाले पार्ट का क्या लेना है एचसीएफ। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रही है चीज। तो यहां पे भी क्या होगा बेटा, ऊपर वाले 2π का एलसीएम 2π, और नीचे वाले पार्ट का क्या लेना है बेटा एचसीएफ। अच्छा ये रेड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 2π/1, तो इसका पीरियड कितना आ गया 2π। इज इट ऑल क्लियर। अच्छा एक ना वहां पे भी एग्जांपल दी हुई थी, एक थोड़ी सी एक्सेप्शनल एग्जांपल है, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स। कोई बताएगा इसका पीरियड कितना होगा। हमें पता है इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, तो दोनों का एलसीएम ले लोगे तो उसका पीरियड भी क्या आएगा पाई, जो कि गलत है, π/2 आएगा। क्यों आएगा π/2। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो बेटा एक बार जरूर शुरुआत कर लेना π/2 से, देख लेना एक बार। ये एक्सेप्शनल केस है। वैसे क्या एक्सेप्शन है इसमें, इसमें एक्सेप्शन ये है बेटा कि अगर मैं यहां पे ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर मैं यहां पे साइन x प्लस π/2 कर दूं और cos x प्लस π/2 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या बन जाएगा मोड cos x। सर माइनस प्लस नहीं आएगा, आएगा माइनस प्लस, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो ये किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यस और नो। तो इसका पीरियड कितना आ गया π/2 आ गया, तो इट्स पीरियड इज π/2, यस और नो। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस है, ये एक बार देख लेना। क्लियर, चलें आगे, समझ में आ गया ये। चलो इसका पीरियड निकाल लोगे, क्या आएगा इसका पीरियड 2π डिवाइडेड बाय π/n+1 सो पाई से पाई कट गया, आंसर क्या आएगा 2n+1। दैट्स इट, ये इसका पीरियड है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। सर ये ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये भी क्या है इंटीजर वैल्यू है। क्या है ये इंटीजर वैल्यू है। हाँ जी सर ये √3 आ गया, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो, t1 बोलो कितना आएगा 2π/2√3। अच्छा t2 बोलो कितना आएगा 2π/5√3। तो t1/t2 क्या बन रहा है, रैशनल और इरैशनल। है जी रैशनल बन रहा है, क्योंकि √3 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे ये रैशनल बन रहे हैं। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लेना है बेटा यहाँ पे। हाँ जी तो ऊपर वाले का क्या लेना है बेटा एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम 2π का एलसीएम कितना आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ लो तो कितना आएगा, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है नीचे से √3। तो आंसर इसका टाइम पीरियड क्या बन गया 2π/√3। नोटबुक ओपन है ना, अगला क्वेश्चन करके दिखाना आपने जल्दी। लो जी, अरे ये तो इजी है, एक मिनट को, ये भी इजी है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, आया ही नहीं। ओ नहीं आया, एक मिनट रुको। फिर यहाँ पे एक काम करो, इसी क्वेश्चन में ना चेंज कर लो, इस क्वेश्चन को आप ये लिख लो, ये करके दिखाओ 3 sin कितना दूं यहाँ पे √3 की जगह चेंज करना है √5, 2 cos। लो बताओ जरा ये पीरियोडिक है कि नॉट पीरियोडिक है, जल्दी 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 फास्ट। क्यों नॉट पीरियोडिक क्यों आए, क्योंकि t1/t2 क्या आएगा इरैशनल आएगा। देख लो एक बार जरा, हाँ जी क्या आया बेटा ये इरैशनल आएगा। क्लियर है, तो ये नॉट पीरियोडिक आ रहा है। चलें आगे चलें, चलो अब ये देखो, अब यहां पे समझो, ये देखो साइन के अंदर साइन आ गया,
अब बाहर वाला फंक्शन है ना, इसकी कोई यूजेज नहीं है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं है, सिर्फ अंदर वाले फंक्शन को चेक करना है। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो बाहर वाला ऑटोमेटिक पीरियोडिक हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है बेटा, इस फंक्शन को चेक करोगी, इज इट पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक। क्या ये पीरियोडिक है sin x/5, इसका पीरियड बताओ कितना आएगा 10 पाई। तो अगर इसका पीरियड 10 पाई है तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड भी कितना आएगा बेटा 10 पाई आएगा। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आपने इसको चेक ही नहीं करना, ये तो बेटा कुछ नहीं है। चेक किसको करना है, सिर्फ इसको चेक करना है। चेक दिस, ये क्या हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट है। क्लियर है जी, समझ में आया? ठीक है जी, अंदर वाले फंक्शन को चेक करना है बस। करें अगला क्वेश्चन। क्या मेरे को कोस चेक करना पड़ेगा पहले? कोस तो बाद में चेक करेंगे ना, सबसे पहले देखो यहां पे स्केयर नहीं आएगा, कुछ नहीं है यहां पे, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, कॉस के अंदर ये लिखा हुआ है और साइन के अंदर ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, ये पीरियोडिक है कि नहीं है 2x, यस और नो? ये पीरियोडिक है कि नहीं है? तो इसको देखने की जरूरत है? नो। ये पीरियोडिक है कि नहीं है? इसको देखने की जरूरत है? नहीं। अगर ये नॉट पीरियोडिक होता फिर हम बाहर वाले को देखते हैं, क्लियर और नॉट। अगर किसी फंक्शन के अंदर पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा हूं बेटा, किसी फंक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, अगर पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है तो बाहर वाले को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर वाले को देखो। तो अब बताओ, हाँ जी, x का पीरियोडिक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पीरियोडिसिटी कितनी होती है 1, तो 2x की पीरियोडिसिटी कितनी होगी? हाँ 2 होगी, कितनी होगी 1/2। तो बेटा t1 कितना आएगा बेटा, इसका पीरियड 1/2। इसका पीरियड बता दो कितना आएगा, अगेन 1/2। तो टोटल पीरियड भी कितना आएगा 1/2। इसका एलसीएम ले लेना तो भी क्या आएगा आंसर 1/2 आएगा। इज इट ऑल क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का? चले आगे, चलो। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट बोल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कोई बता सकता है इसका पीरियड? मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है कि sin 6x देखना है? sin 3x देखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पीरियोडिक होता ही नहीं है। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई जरूरत है हमें? नहीं। कौन पीरियोडिक है यहाँ पे? sin 3x पीरियोडिक है। तो बताओ इसका पीरियड कितना होगा? 2π/3। अच्छा, इसका पीरियड बता दो कितना आएगा, इसका पीरियड? अरे π/3। मेरे को ये बताओ, मोड cos x का पीरियड कितना समझाया था आपको भी, पाई। तो भाई cos 6x का पीरियड कितना हो जाएगा? फिर 2π/3 बोल रहे हो, π/3 कह रहे हो। वो cos सिंपल x, cos x का पीरियड होता है 2π। ये मोड cos x लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पे पीरियड कितना आएगा π/6। अब क्या लेना है बेटा इनका एलसीएम, 2π। अच्छा बोलो, हाँ जी, 2π और पाई का एलसीएम और 3 और 6 का एचसीएफ। तो आंसर कितना आ गया 2π/3। ओवरऑल आंसर इज 2π/3। क्या मेरी बात फॉलो करके? चलो खत्म। बाकी आप मैंने क्वेश्चंस करा भी रखे हैं क्लासरूम नोटबुक पे, तो वहां से भी देख लेना, वैसे ही क्वेश्चन थे पीरियोडिक। ठीक है जी, चलो आगे देखो, इवन ऑड फंक्शन। हाँ जी, क्या होता है इवन ऑड फंक्शन, किसी को पता है? इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है? क्या कंडीशन होती है इवन ऑड फंक्शन की? हाँ जी, अगर बेटा मैं कहता हूं कि f(-x) की वैल्यू f(x) के इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। और आप इस ग्राफ को भी चेक कर लो, जिस दिन मेरा ग्राफ सिमेट्रिक टूवर्ड्स y एक्सिस बन रहा है, उस दिन मैं फंक्शन को क्या कहता हूं, इवन फंक्शन कहता हूं। क्लियर है जी? और जिस दिन बेटा हमारा फंक्शन
माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, उस दिन हम उसको क्या कहते हैं, ओड फंक्शन। ग्राफ चेक कर लो, ये बन रहा है क्या, सिमेट्रिक टूवर्ड्स व्हाट, ओरिजिन, नॉट एक्स एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक टूवर्ड्स ओरिजिन। जिस दिन सिमेट्रिक टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया, उस दिन वो ग्राफ क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये कुछ एग्जांपलें दी हुई हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये सारे के सारे कैसे टाइप के फंक्शन है, इवन फंक्शन। ये देखो लिखा हुआ है नोट, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्लियर है जी? और इसका इसका क्या होएगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या मेरी बात फॉलो करके समझ में आया? अब मेन इसमें क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन। मैं इवन को पॉजिटिव मानता हूं और ओड को लेट्स सपोज नेगेटिव। तो इवन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। इवन इंटू इवन क्या आएगा, इवन। इवन इंटू ओड क्या आएगा, ओड। क्यों? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये देखो, बाकी ये टेबल बना रखा है, ये टेबल के जरिए आपको बता देता हूं। देखो ओड ओड, अगर दोनों फंक्शन ओड हैं तो सम कर लो तो भी ओड आएगा, सब्ट्रैक्शन कर लो तो भी ओड आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, और डिवाइड करोगे तो भी इवन आएगा। ये क्या है, जी ऑफ एफ, मतलब जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, कंपोजिशन फंक्शन, ये एफ के अंदर जी ऑफ एक्स। अगर बेटा ओड, दोनों ओड हैं तो कंपोजिशन फंक्शन भी क्या आएंगे बेटा, ओड ओड आएंगे। इज इट क्लियर हो? समझ में आया? अगर दोनों इवन इवन है तो चाहे जो मर्जी करी जाओ, हमेशा क्या आएगा, इवन। अब ध्यान रखना, ये ओड है और ये इवन है, ये नीदर इवन नॉर ओड, नीदर इवन नॉर ओड, ओड ओड। अच्छा अब देखो, जो बाहर वाला फंक्शन होगा ना, वो जो होगा वही फंक्शन बनेगा। अब बाहर क्या है, जी, जी कैसा फंक्शन है, इवन के ओड, इस केस में इवन फंक्शन है, तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, इवन। अच्छा एफ देख लो, इसमें क्या बनेगा, नहीं ध्यान से सुनो। अब देखो इधर देखो, अगर मैं कहता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं कह के चल रहा हूं कि जी जो है वो इवन फंक्शन है और एफ जो है वो ओड फंक्शन है। हम इवन ओड के लिए क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, है ना, यही है। अब मेरे को ये बताओ, जी इवन है कि ओड है, जी तो इवन है। अगर जी इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स एक ही बात होती है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इस केस में भी ये क्या बनेगा फंक्शन बेटा, इवन बनेगा। इज इट क्लियर? और समझ में आई ये चीज? मतलब चाहे इवन हो चाहे ओड हो, कंपोजिशन फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन रहेगा बेटा, इवन फंक्शन रहेगा। ये सिर्फ किस केस में ओड बनेगा, जब दोनों क्या फंक्शन होंगे, ओड होंगे। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आई ये चीज? पक्का? देख लो, चले आगे चले। अच्छा ये भी चीज चेक कर सकते हो, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, फंक्शन इज इवन, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फंक्शन भी क्या होते हैं यहाँ पे, ओड फंक्शन। और बेटा अगर कोई फंक्शन नीदर इवन नॉर ओड हो, उसको इवन और ओड बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे बेटा, ये वाले पार्ट से। ये आपने कहां पढ़ा था, ये मैट्रिसेस में आपने पढ़ा था ना, ट्रांसपोज में, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू। उसी तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे बीच में साइन आएगा प्लस का। क्लियर है जी? तो इस तरीके से आप क्या चेक कर सकते हो, ये फंक्शन इवन है के ओड। इज इट क्लियर हो? चले आगे, चलो। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाँ जी, चेक करना है इवन है के ओड। क्या करना होता है चेक करने के लिए, एफ ऑफ माइनस एक्स, हाँ जी क्या बन जाएगा, लॉग। अच्छा यहां पे माइनस रखोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये रेसिप्रोकल नहीं हो गया, मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा। हाँ जी क्या बन गया ये, अच्छा इवन फंक्शन बन गया, कैसा फंक्शन बन गया ये, ऑड फंक्शन बन गया। इज इट क्लियर हो? तो कैसा फंक्शन है ये, ऑड। अच्छा इसके लिए क्या करोगे, अगेन एक्स को क्या रखेंगे, माइनस। हाँ जी बोलो, क्या बन जाएगा, लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, नीदर इवन नो रूट। आपको याद होगा जब भी बेटा रूट आता है न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं। एक बार इसको रैशनलाइजेशन करके देख ले।
अब मैंने इसको अगर रैशनलाइज कर दिया, हाँ जी, देखो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो ये कट गया। अच्छा ये 1/, बना 1/, को कैसे लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, हाँ जी कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है, इट इज ए ऑड फंक्शन। क्या मेरी बात फॉलो करके, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, अब इसको भी चेक करना है इवन है कि ऑड है, लेकिन दिक्कत क्या है, नीचे क्या आ गया, क्या आ गया नीचे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। ऊपर वाला फंक्शन तो हम चेक कर लेंगे, लेट्स सपोज ऊपर वाले फंक्शन को ये याद करो, ये मैंने उस टाइम पे भी क्वेश्चन करवाया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऊपर वाले को एच ऑफ एक्स मान लिया, नीचे वाले को जी ऑफ एक्स मान लिया। क्लियर है जी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले। अभी कल ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है, ये 1 आ जाएगा बाहर, तो ये है आपका जी ऑफ एक्स सॉरी प्लस हाफ। अब देखो इसको तो चेक करना बहुत इजी है, आप एक बार चेक करो एच ऑफ माइनस एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्यों, साइन ओ माइनस एक्स रखोगे माइनस साइन एक्स, टेन ओ माइनस एक्स रखोगे माइनस टेन एक्स, और ये माइनस एक्स, तो बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये वाला पार्ट तो इवन है। रही बात इसकी, अब ये एक्स बाई पाई है, अब एक्स बाई पाई को देखो कैसे सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि इवन ऑड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स बाई पाई प्लस 1/2 ऐसा दिया हुआ है। अब ये बताओ ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें दिक्कत है, कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें दो चीजें थी कि अगर x इंटीजर है तो ऐसा होगा, अगर x नॉन इंटीजर है तो ऐसा होगा। तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू दो तरह से डिफाइन की जाएगी, अगर x n पाई है तो क्या होगा, अगर x n पाई नहीं है तो क्या होगा, मतलब ये n क्या है, इंटीग्रल वैल्यू, इज इट क्लियर और नॉट। अगर बेटा x n पाई है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अगर बेटा ये इंटीग्रल वैल्यू है तो ये माइनस का साइन एज इट इज बाहर आ जाता है, यस और नो, क्लियर और नोट। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस का साइन तो बाहर आता ही आता है बेटा, साथ में -1 आता है, और ये प्लस हाफ तो जो दिया हुआ है वही लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आई। तो बेटा n पाई के लिए तो मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन क्या बन गया, 0 बन गया। 0 को तो हम क्या कहते हैं, इट इज इधर इवन नंबर और इट इज इधर ए ओड नंबर, ये तो जो बोलोगे वो बन जाएगा, ओड बोलोगे तो ओड बन जाएगा, इवन बोलोगे तो इवन बन जाएगा, 0 को हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऊपर वाला केस तो हो गया खत्म, क्योंकि n पाई रखने पे व्हेन x इक्वल टू n पाई then h of x is equivalent to 0, hence f of x equal to 0। तो ये तो केस यही खत्म हो गया बेटा। अब मैं कहता हूं जब x की वैल्यू n पाई नहीं है, हाँ जी, तो ये बताओ ये फंक्शन इवन बन रहा है कि ओड बन रहा है। इसको थोड़ा सा दोबारा लिख दूं, ये नीचे वाला पार्ट माइनस ऑफ एक्स बाई पाई माइनस हाफ, यस और नो। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल बन गया, अगर मैं माइनस का साइन बाहर ले लूं क्या ये जी ऑफ एक्स के इक्वल बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि ये बन रहा है माइनस जी ऑफ एक्स। क्लियर, यस और नो।
देख लो इसमें से ये बनेगा, इसमें से माइनस का साइन बाहर लो तो क्या बन गया, माइनस जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपका कैसा था, एच ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ये आ रहा है बेटा आपका इवन, और नीचे वाला क्या आ रहा है बेटा आपका ओड। इवन बाय ओड अगर है तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, ओड। सर आपको कैसे होता, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसीलिए मैंने बेटा क्लियरली यहां पे लिख दिया कि ये इवन है और ये ओड है, तो आंसर क्या आएगा, ओड। कैसे सर, ये देखो यहाँ पे पता लग गया एच ऑफ एक्स क्या है, इवन नंबर, और यहाँ पे पता लग गया जी ऑफ एक्स क्या है बेटा आपका, ओड नंबर। तो इसीलिए बेटा हमने क्या बोल दिया, ये टोटल फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन। क्लियर है जी। तो आज हम इतना ही करेंगे और बाकी करेंगे कल। कल बेटा हम क्या करेंगे, फंक्शनल इक्वेशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। चलो कल फंक्शनल इक्वेशन और +2 वाला जो फंक्शन है वो करेंगे, इन अपना मैनी वन फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। और उसके बाद हम करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। क्लियर है जी। चलो बंद कर दो बेटा ये लेक्चर, ठीक है। और जिस बच्चे को शीट नहीं मिली जाते हुए लेके जाना, और बेटा काम कर लो अपना साथ साथ, और जिस दिन मैंने नोटबुक चेक की उस दिन आपका काम कंप्लीट होना चाहिए।